کہ ذائقہ کا 3 رکنی وفد مزید نئے پروجیکٹس کی تلاش میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ ذائقہ وفد نے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ایم ڈی واسا سے اہم ملاقات کی۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے 3 نئے پروجیکٹس کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ جھنگ برانچ کینال پر 20 ملین گیلن ڈیلی کا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی پوٹینشل موجود ہے۔ جھال خانوانہ پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ میں توسیع کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذائقہ کا 3 رکنی وفد مزید نئے پروجیکٹس کی تلاش میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ ذائقہ وفد نے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے ایم ڈی واسا سے اہم ملاقات کی ہے۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے 3 نئے پروجیکٹس کے حوالے سے تجاویز پیش کی ہیں۔ جھنگ برانچ کینال پر 20 ملین گیلن ڈیلی کا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی پوٹینشل موجود ہے۔ جھال خانوانہ پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ میں توسیع کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خانوانہ پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ میں توسیع کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ذائقہ کا 3 رکنی وفد جو ہے مزید نئے پروجیکٹس کی تلاش میں فیصل آباد پہنچا ہے اور ایم ڈی واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ سے ملاقات بھی کی گئی ہے۔ ذائقہ وفد نے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے جب ملاقات کی تو ایم ڈی واسا کی جانب سے شہر میں 3 نئے پروجیکٹس کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو جھنگ برانچ کینال پر 20 ملین گیلن ڈیلی کا سروس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی پوٹینشل موجود ہے، ایسا کہنا تھا اس ملاقات میں ایم ڈی واسا کا۔ جبکہ جھال خانوانہ پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ میں مزید توسیع کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے تو شہر کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے گوگیرا برانچ کینال پر 5 ملین گیلن یومیہ کا پروجیکٹ بھی تجویز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ذائقہ کے 3 رکنی وفد نے نہ صرف پہلے سے تیار کیے گئے منصوبوں پر بات کی بلکہ نئے پروجیکٹس لانے کے حوالے سے بھی اندیا دیا ہے، جس پر ایم ڈی واسا کی جانب سے 3 نئے پروجیکٹس جو کہ فیصل آباد میں صاف پانی کی سپلائی کے لیے ہوں گے، اس حوالے سے باقاعدہ نہ صرف بریفنگ بھی بلکہ مختلف تجاویز جو ہیں ان کو پیپر ورک کی شکل دینے کے حوالے سے بھی آئندہ 1 ہفتے کا اندیا دیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تمام نئے پروجیکٹس کے حوالے سے پیپر ورک مکمل کر کے ذائقہ وفد کے حوالے کیا جائے گا تاکہ نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی جلد شروع کیے جا سکے اور فیصل آباد شہری کے تمام آبادی کو جو ہے صاف پینے کے پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ جی آپ کو بتائیں کہ ان دنوں پروجیکٹس کے سولر انرجی پر منتقل کرنے کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گوگیرا برانچ کینال پر 5 ملین گیلن ڈیلی کا پروجیکٹ بھی تجاویز میں شامل ہے۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا، ڈائریکٹر پی این ڈی مقبول احمد بھی موجود تھے۔ جھنگ برانچ کینال پر 20 ملین گیلن ڈیلی کا سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی پوٹینشل موجود ہے۔ بہت شکریہ وقاص احمد بیگ آپ کا۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری میگا سیوریج منصوبے مسنگ لنکس کا کام مکمل۔ منصوبے کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ٹوبا روڈ کو ریلیف مل گیا۔ گوجرا روڈ بیگ کالونی کو بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ورلڈ بینک کے تعاون سے سیوریج کے میگا پروجیکٹ کے اوپر کام جاری ہے۔ 17 مسنگ لنکس جن میں ٹوبا روڈ کا مسنگ لنک ہے، اس کے ساتھ ساتھ گوجرا روڈ اور البیگ کالونی اور اس کے ملحقہ سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت جو دارالسکینہ روڈ ہے، بہت سے مسنگ لنکس لگا دیے گئے ہیں، جس کے بعد ان علاقوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، جن میں ٹوبا روڈ کا حسین آباد سمیت سول لائن کے کچھ علاقے جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گوجرا روڈ سے بیگ کالونی فیسیلیٹیٹ ہوئی ہے اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقوں کو بھی جو ہے وہ مین سیور لائن سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ان علاقوں میں سیوریج کے مسائل کے حوالے سے صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ان علاقوں کی صفائی سمیت دیگر انتظامات بھی جو ہیں وہ کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ علاقے کے اندر بھی سیوریج مسائل حل ہونے کے ساتھ ساتھ جو برساتی پانی کی نکاسی ہے وہ بھی آسان ہوئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر مانسون اور برسات کے بعد ٹوبا روڈ کی تمام تر کھدائی کر کے یہاں پر جو ابھی سیور لائن لگنی ہے، ٹرنک سیور لائن، اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد غلہ منڈی سمیت نواز چوک تک کے مسائل حل ہوں گے اور اس کے علاوہ دوسرا بڑا لنک جامعہ چوک سے چنیوٹ موڑ تک، اس کو بھی جو ہے وہ جلد مکمل کیا جائے گا، جس کے بعد جھنگ کے اندر سیوریج کے مسائل کا مکمل خاتمہ ہو سکے گا۔ بہت شکریہ رمضان آپ کا۔ جائیدادوں کے مالکان کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے جائیدادوں کے مالکان کو ستمبر کے اختتام تک پراپرٹی ٹیکس ادائیگی پر 5% رعایت دی جائے گی۔ پہلی سہ ماہی ختم ہونے پر ٹیکس ریلیف بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ بتائیے گا۔ جی، جائیدادوں کے مالکان کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے شہریوں کو ان کی جائیدادوں پر عائد ہونے والے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر
ٹیکس میں رعایت دی جائے گی۔ وہ تمام شہری جو کہ رواں مالی سال کا پراپرٹی ٹیکس 30 ستمبر تک ادا اگر کر دیں گے تو ان کو پراپرٹی ٹیکس میں 5% ریلیف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ پہلی سہ ماہی ختم ہونے پر ٹیکس میں ریلیف کی سہولت جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی، اور 1 اکتوبر سے ایکسائز حکام کی جانب سے نہ صرف پورا ٹیکس عائد کیا جائے گا بلکہ ٹیکس جمع نہ کروانے والوں کو ماہانہ بنیادوں پر پینلٹی عائد بھی کرنا شروع کر دی جائے گی۔ تاہم وہ لوگ جن کے ذمے گزشتہ سالوں کے واجبات ہیں اور وہ 30 ستمبر تک ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ گزشتہ سالوں کے واجبات پورے جمع کروانا ہوں گے، صرف رواں مالی سال کی ٹیکس ادائیگیوں میں ہی ریبیٹ فراہم کیا جائے گا۔ ایکسائز حکام کے مطابق وہ تمام شہری جو ٹیکس میں ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جرمانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ 30 ستمبر تک اپنا یکمشت ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جی، گزشتہ برسوں کے واجبات کی ادائیگی پر ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا، ٹیکس ریلیف یکمشت ادائیگی کو ہی ملے گا۔ عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ جنگ سرکار نے چینی کے نرخ تو مقرر کر دیے مگر رسم متاثر ہو گئی۔ بڑے سٹورز کے علاوہ بیشتر کریانہ مرچنٹس پر چینی غائب۔ تفصیلات رمضان مرزا کی رپورٹ میں۔ سرکار نے چینی کے نرخ تو مقرر کر دیے مگر رسد یقینی بنانا بھول گئے۔ جنگ کے بڑے سٹورز کے علاوہ بیشتر کریانہ مرچنٹس پر چینی غائب ہے۔ جنگ میں گلی محلے کی دکانوں کو چینی دستیاب نہ رہی۔ چینی فراہم کرنے والی دکانوں پر چینی کا نرخ 190 روپے کے لگ بھگ ہیں۔ صارفین ناراض ہیں۔ مین جو شوگر ملیں ہیں جہاں سے چینی کی پیداوار ہو رہی ہے وہاں سے عوام کو چینی سستے داموں لے کے دی جائے جو سرکار نے ریٹ طے کیا ہوا ہے۔ دکاندار اپنی جگہ پہ مجبور ہے کیونکہ ان کو بھی بلیک میں چینی مل رہی ہے، وہ بھی بلیک میں مل رہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ جو اینڈ یوزر ہے، جو عوام ہے، وہ پیس رہی ہے۔ میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب جو شوگر مول کریں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کنٹرول ریٹ پر چینی فراہم کرے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ کپڑے کی پیداواری لاگت اور بجلی اور گیس کے ریٹس میں اضافہ۔ فیصل آباد کی کپڑا مارکیٹس میں مہنگائی کی نئی لہر آنے کو تیار۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کہ آئندہ سیزن کے لیے کپڑا 10 سے 15% تک مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں موسم گرما کے بعد اب آئندہ سیزن کا کپڑا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ تاجر برادری نے مہنگی بجلی کی وجہ سے آنے والے سیزن کے لیے کپڑے کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ نئے سیزن کے لیے کپڑے کی پیداواری لاگت بڑھنے سے کپڑے کی قیمت میں بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ کپڑے کا کاروبار کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخ اور گیس کے ریٹ میں اضافے سے کپڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ کپڑے کی پروسیسنگ اور فنشنگ کے عمل کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کپڑے کی قیمتیں جو ہیں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس اب جو سیزن آ رہا ہے موسم سرما کا، اس حوالے سے اب جو کپڑا خریدنا ہے عوام نے، تو میں کہتا ہوں اس کو 10 سے 15% جو ہے وہ مہنگا خریدنا پڑے گا۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ پروسیسنگ اور فنشنگ پر لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آئندہ سیزن کا کپڑا 10 سے 15% تک مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ عوام کی قوت خرید بہت متاثر ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ ان گیس بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، جس سے جو ہے کپڑے کی قیمت کم ہو، ہماری لاگت کم آئے اور عوام کو ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تاجروں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئے اور کاروبار کا پہیہ چل سکے۔ کیمرامین محمد معیز کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں دکانداروں، بازاروں کے صدور اور سیکرٹریز کی شرکت۔ شرکا نے انتظامیہ سے بازاروں کی رکاوٹیں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں دکانداروں، بازاروں کے صدور اور سیکرٹریز کی شرکت۔ شرکا نے انتظامیہ سے بازاروں کی رکاوٹیں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں تاجروں اور دکانداروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بازاروں کی رکاوٹیں ہٹانے، چالان کی روک تھام اور ڈسپلے کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین امین بٹ کہتے ہیں ہمارے تمام مطالبات جائز ہیں، انتظامیہ سے اپیل ہے ان پر غور کرے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر دھرنا دیں گے۔ سٹی صدر چودھری محمد ارشد نے کہا کہ آج کی پرامن ریلی میں تمام تاجر باہر نکلے اور انتظامیہ سے اپنے جائز مطالبات کی اپیل کر رہے ہیں۔ کی ریلی ہزاروں کی ریلی تھی، اتنی بڑی ریلی آج تک نہیں نکلی، کیونکہ آج کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آٹھوں بازاروں میں راستے بند کیے تھے، اس سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہمارے رش بھی تنگ ہے، ہمارے غریب لوگ بھی تنگ ہے، ہمارے دکاندار بھی تنگ ہے۔ اس کے بعد جو ڈسپلے نہیں دیا گیا
उससे भी हमारे दुकानदार परेशान हैं। उसके साथ 2000 का जुर्माना किया जा रहा है। वो शहर में ना किया जाए, क्योंकि अगर शहर में करेंगे तो शहर में हेलमेट की जरूरत क्या है? ये भी रोड पर करें, हम कोई इतराज नहीं करेंगे। ये 3 मुतालबात हैं। हमने मरीम साहबा से ये कहा था, हमें मरीम साहब ने डीसी को ऑर्डर दिया था कि इंक्रोचमेंट खत्म कराएं, वो हमने इंक्रोचमेंट खत्म करा दिया। फिर लाइट वाले बोर्ड का वो भी लगा दिए। अब ये डीसी साहब हमें रास्ते बंद कर रहे हैं या कमिश्नर साहब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? लिहाजा ये हमारा जायज मुतालबात है, 3 पूरी तरह माने जाएं, वगरना आज बहुत है, अगले बहुत तक अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो या हम हड़ताल करेंगे या तमाम शहर, हजारों लोग, दुकानदार, गरीब लोग, तमाम चाबी दुकान की लेकर हम डीसी साहब के गेट पे बैठ जाएंगे और उतनी देर तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात तस्लीम नहीं होते। आपने देखा कि आज पूरा शहर सरापा एहतजाज बना है और ये सब ताजर भाइयों का खून शब हो रहा था। सब ताजर लोग यकीन करें, जिनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं, ये इंतज़ामिया को चाहिए। हमारे इंतज़ामिया हमारे लोग हैं, एजेंसियां हमारी हैं, हम इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना चलते हैं और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये भी हम ताजर भाइयों का ख्याल करें और ये जो गाड़ियों की आमदोरफ्ता शहर में 8 बाज़ारों में होनी चाहिए, पार्किंग ना होने दे, पार्किंग ज़ीरो कर दें। पार्किंग हम वैले सिस्टम, हम ताजर लोग खुद वैले बंदे रखेंगे, वही गाड़ियाँ बाहर लेके जाएंगे और जब कस्टमर फारग होगा तो तब बाहर ले जाएंगे। तो ये आज तो एहतजाज है, ये इससे आगे अगर हमारी इंतज़ामिया ने हमारी कोई बात ना सुनी तो हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्राइक में जाएंगे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में दुकानदारों, बाजारों के सदूर और सेक्रेटरीज की शिरकत। शुरा ने इंतजामिया से बाजारों की रुकावटें हटाने का मुतालबा किया है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद की रहायशगाह पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया है। टिकट होल्डर मियां इरफान मनान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आइए आपको लिए चलते हैं। तशरीफ फरमा है, दिल की गहराइयों से आपकी सबकी तशरीफ आवरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद आज की ये जो मुशावरती इजलास है, इसको कबल अज वक्त बुलाने का मकसद ये था कि 14 अगस्त 1947 जब मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में ये वतन अजीज आज़ाद करवाया, तो उस वक़्त हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान की सड़कों पे, चौक चौराहे में एक ही नारा मस्ताना वार बुलंद हुआ करता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, वो मंजर कशी की थी कि कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीनिया दे विच बलमा टुटियां। कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीनिया दे विच बलमा टुटियां, ते इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां। फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। और पाकिस्तान को बनाने के बाद एक वक्त वो भी था मियां साहब के जब लाहौर के सेक्रेटेरिएट में फाइलों को लगाने के लिए कॉमन पिन दस्तयाब नहीं थी, लेकिन वक्त का पहिया घूमा। आपके कायद मियां नवाज शरीफ ने आपको मोटरवेज का पाकिस्तान फराहम किया, आपको यूनिवर्सिटीज का पाकिस्तान फराहम किया, आपको डिजिटल पाकिस्तान फराहम किया। और उसके बाद ये तरक्की का सफर चलता हुआ आज आप स्लोगन पढ़ें कि हसूल आज़ादी से लेकर तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का जो सफर है, उसमें अगर आप 9-10 साल अपने और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के निकाल दें तो ना आपके पास मोटरवे है, ना आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, ना आपके पास डिजिटाइज इकोनॉमी है, ना आपके पास सड़कें हैं, ना वो 14-14 की लोड शेडिंग को खत्म करके दहशतगर्दी का। और हाजी साहब आपको याद है ना, जब आपके घरों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी और दहशतगर्दी उसका अजदहा जो था वो आपके
न सिर्फ वसाइल को हड़प कर रहा था बल्कि जवान लाशें डेली उठाए जाते थे। बलूचिस्तान में आपका कौमी तराना नहीं पढ़ा जाता था। आपका ये जो सब्ज हलाली परचम जो है आपकी इज्जत और आपकी असमत की जो अलामत है, बुलंदी की अलामत है, ये भी नहीं लहराया जाता था। फिर मेरे कायद ने कहा कि मैं आ रहा हूं। फिर मेरा कायद आया, वो सी पैक लेके आया, आपके घरों में रोशनियां दी, उजाले तकसीम किए, दहशतगर्दी के उस जिन को बोतल में बंद करके ऊपर से ढक्कन टाइट कर दिया। मियां साहब, मियां रफी साहब दसो किया कि नहीं किया? तो उसके बाद फिर एक 3.5 साल का एक और दौर आया जो कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। हाजी साहब वो नया पाकिस्तान बनाने वाला मिस्त्री, उसने फिर जो गुल खिलाए, अगर मैं उसकी तफसील में जाऊं। अब आपको बताएं कि झंग में दरिया चनाब के हिफाजती बंदर सरगोदा रोड के ज़रई रकबे सैलाबी पानी से शदीद मुतासर। मसाइल में घिरी आबादियों में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। तिरिमू बैराज में पानी की सतह में कमी के बावजूद ज़ेर-ए-आब इलाकों में दबाव कम न हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैलाबी पानी के सबब ज़ेरे आब आए इलाकों में मसाइल ने घर कर लिया। दरिया चनाब के हिफाजती बंद और सरगोदा रोड के ज़रई रकबे भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर हुए। तिरिमू बराज पर पानी की मिकदार कम होकर 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। तिरिमू बराज पर पानी में कमी आने के बावजूद झंग के इलाकों में दबाव कम न हो सका। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज दिखाई देने लगी। तो बड़े तंग होने हैं, बिस्तरे सारे सज सुज गए, सामान पानी इस वक्त बहुत डूंगा खलोता है, खान पीने दे बड़ी प्रॉब्लम सानू है। भूख से मार रहे हैं। मियाँ काम करता था, वो भी बैठा मजदूरी करता था दिन पर रात। दरिया किनारे आबाद मकीनों के घर, डेरे और जानवरों के बाड़ों में भी पानी ने डेरा जमा लिया। मजीद सैलाबी रेले न आए तो मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर आने के लिए 2 हफ्ते दरकार होंगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। चिनियोट इंतजामिया लावारिस लाशें संभालने से कासर, मुनासिब इंतजाम वजूद में ना आ सका। तोबा टेक्सिंग में मर्चरी डेड हाउस के मरतबे पर फाइज एक फ्रीजर में 6 लाशें रखने की गुंजाइश मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से लाशों को मुफ्त महफूज करने की भी सहूलत मुतारिफ कराई गई। NGOs का हुकूमत से लावारिस लाशों की शनाख्त का निज़ाम मुतारिफ करवाने का मुतालबा। चिनियोट में सरकारी सतह पर लवारिस लाशें संभालने का कोई इंतजाम वजूद में न आ सका। जिला भर में डेड हाउस ही फंक्शनल नहीं है। मकामी NGO साहिबान ज़ईफ़ा कफन दफन का इंतजाम करें। NGO के नुमाइंदे एजाज फरजाना लाली का कहना था कि हादसा के नतीजे में मिलने वाली लाशों का कफन दफन किया जाता है। पुलिस कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज की तदफीन के इंतजाम किए जाते हैं। डॉक्टर निसार अली का कहना था कि जिला भर से रवा साल 30 से 40 लावारिस लाशें मिली। हुकूमत लावारिस लाशों की शनाख्त का निज़ाम मुतारिफ करवाए। डिस्ट्रिक्ट चिनियोट में कोई डेड हाउस नहीं है। पुलिस वाले ले आते हैं डेड बॉडी और यहाँ पे लाके अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद हम पुलिस वालों के साथ मिलके उनका गुस्ल कफन करके जनाजा करवा कर बाकायदा उनको एहतराम के साथ कब्रिस्तान में दफन करते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हमने जो है वो 170 के करीब हमने दफनाई हैं। तोबा टेक्सिंग में लाशों को महफूज करने के लिए जदीद निज़ाम मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 1 कमरे का मार्चरी यूनिट फराइज अंजाम देने लगा, जहां लाशें महफूज रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल फ्रीजर ज़ेरे इस्तेमाल है। मार्चरी यूनिट के फ्रीजर में 6 लाशें एक साथ महफूज की जा सकती हैं। मार्चरी में लाशें मुफ्त महफूज करने की सहूलत दस्तयाब है। तोबा टेक्सिंग मार्चरी को रवा साल 50 लाशें मौसूल हुई। लाशों में से 11 की शनाख्त न हो सकी, जिनकी NGOs की जानिब से अमानतन तदफीन की जा चुकी है। शहर को साफ सुथरा रखने का टास्क म्यूनिसिपल कमेटी चिनियोट ने गाय, भैंस और मवेशी शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए 15 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मालिकान को नोटिस भिजवा दिए गए। शहर में दिखाई देने वाले जानवर तहवील में लेकर जोमिया, जुर्माना, खुराक खर्च और मुंतकिली का किराया भी वसूल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी चिनियोट ने शहरी इलाकों में गाय भैंस रखने वाले मालकान को नोटिस जारी कर दिए। 15 रोजा मोहलत खत्म होने के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत शहरी हदूद में नजर आने वाले मवेशी पकड़कर इंपाउंडिंग पॉइंट्स पर मुंतकिल और कानून के तहत मवेशी मालकान को यौमिया जुर्माना भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी वासिक अब्बास हरल का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत म्यूनिसिपल हदूद में गाय भैंस और मवेशी रखना ममनू करार दिया गया है। चिनियोट शहर की जो म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई भैंस, कोई मवेशी उसको रखने पे हमने पाबंदी लगा दी है। उसका बाकायदा हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 15 दिन का नोटिस जारी किया है। 15 दिन के बाद अगर कोई भी बंदा मवेशी जो है वो रखता हुआ पाया गया
तो उसका मवेशी जो है वो फौरी तौर पे वहाँ से उठा लिया जाएगा। हमने शहर के अंदर 5 जो हैं वो पाउंडिंग स्टेशंस बनाए हैं जहाँ पर हम मवेशियों को लेकर जाएंगे और उनका चारा, उनकी खुराक, उनकी ट्रांसपोर्ट का जो है वो किराया उनके ऊपर डाला जाएगा। वासिकाबाज हरल का कहना था कि 15 रोजा मोहलत के बाद मवेशी मालकान से बड़ा जानवर 3000 जबकि छोटा जानवर 1000 रुपया योमिया जुर्माना आयद होगा। बड़े जानवर की खुराक 500 रुपए और छोटे जानवर की खुराक के लिए 200 रुपए फी योम वसूल करने के साथ साथ बड़े जानवर का ट्रांसपोर्ट किराया 1000 और छोटे जानवर का किराया 500 रुपए फी जानवर भी वसूल किया जाएगा। इस वक्त हम बड़ी सख्ती से इसके साथ निपट रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर सफाई सुथराई के मामलात जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हैं और हमारा सीवरेज का निज़ाम भी एनिमल्स के वेस्ट की वजह से ख़राब हो रहा है और इसके खिलाफ हम सख्ती से एक्शन लेने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से वादिया किया गया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए गाय, भैंस और मवेशियों का इन्हला नागुज़ीर है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर थाना सताना पुलिस की कार्रवाई। SHO आफ्ताब अहमद ने अगवाकार मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुखबी को बाजियाब करवा लिया। 24 घंटे में अगवाकार मुलजिमान गुलजार और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तावान के लिए अब्दुल गफार नामी शहरी को लारी अड्डा से अगवा किया था। थाना सताना पुलिस ने मगवी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया। आपको बता रहे हैं सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर थाना सताना पुलिस की कार्रवाई। SHO आफ्ताब अहमद ने अगवाकार मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुखबी को बाजियाब करवा लिया। 24 घंटे में अगवाकार मुलजिमान गुलजार और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तावान के लिए अब्दुल गफार नामी शहरी को लारी अड्डा से अगवा किया था। थाना सताना पुलिस ने मगवी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया था। अपडेट कर रहे हैं 24 घंटे में अगवाकार मुलजिमान गुलजार और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तावान के लिए अब्दुल गफार नामी शहरी को लारी अड्डा से अगवा किया था। थाना सताना पुलिस ने मगवी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर थाना सताना पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, जिसमें अगवाकार मुलजमान जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ जो मगवी है जिसे अगवा किया गया था उसे भी बाजियाब करवा लिया गया है। SHO थाना सतियाना इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद ने 24 घंटों में अगवाकार मुलजमान गुलजार और शाहिद जो हैं इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जो इन्होंने पैसों के इवज अब्दुल गफार नामी शहरी को लारी अड्डा से अगवा किया था। थाना सतियाना पुलिस ने मगवी के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था और कार्रवाई का आगाज किया था। थाना सतियाना पुलिस ने आज दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके इब्तदाई कार्रवाई जो है उसका भी आगाज कर दिया है। जी इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अली हैदर भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर कबर खालिद की सरबराही में करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने प्रॉपर्टी फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। 5.5 करोड़ के फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिमान में मुमताज हुसैन और फलक शेर शामिल। मुलजिमान ने पटवारी के अमले से मिलकर शहरी की जायदाद में रद्दोबदल किया। डायरेक्टर कबर खालिद के हुक्म पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमान सर्कल एंटी करप्शन मुंतकिल। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर कबर खालिद की सरबराही में करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने प्रॉपर्टी फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। 5.5 करोड़ के फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिमान में मुमताज हुसैन और फलक शेर शामिल। मुलजिमान ने पटवारी के अमले से मिलकर शहरी की जायदाद में रद्दोबदल किया। डायरेक्टर कमर खालिद के हुक्म पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमान सर्कल एंटी करप्शन मुंतकिल। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चिन्योट में पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी। गुज़श्ता माह में ऐप के जरिए 41,000 से ज्यादा अफराद को चेक किया गया। गुज़श्ता माह में पुलिस ने ऐप के जरिए 34,000 से ज्यादा व्हीकल्स को चेक किया। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 7 मुजरिमान इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। अपडेट कर रहे हैं चिन्योट में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी है। गुज़श्ता माह में ऐप के जरिए 41,000 से ज्यादा अफराद को चेक किया गया। गुज़श्ता माह में पुलिस ने ऐप के जरिए 34,000 से ज्यादा व्हीकल्स को चेक किया। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 7 मुजरिमान इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं।
डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की थाना वरियाम में खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने गए, फौरी अहकाम जारी। डीपीओ ने गश्त को मौसर बनाने और तफ्तीशी अमूर तेज करने की हिदायत दी। एसएचओ थाना मोचीवाला और तमाम तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में मौजूद। मनशियात के हवाले से डीपीओ ने शहरियों से इस्तफसार किया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है मनशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की थाना वरियाम में खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने गए, फौरी अहकाम जारी किए। डीपीओ ने गश्त को मौसर बनाने और तफ्तीशी अमूर तेज करने की हिदायत दी। एसएचओ थाना मोचीवाला और तमाम तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में मौजूद। मनशियात के हवाले से डीपीओ ने शहरियों से इस्तफसार किया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है मनशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस 19 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में तकसीम कर दिए। सीरियल नंबर 1 से 130 तक की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की अदालत में हुआ करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वाक़या कंज्यूमर कोर्ट्स खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केस और नए दायर होने वाले केसेस के इख्तियार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सौंप दिए थे। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कंज्यूमर कोर्ट में जेर समाअत केसेस मतहत 19 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में तकसीम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में से 5 से 10 केसेस तकसीम किए हैं। फूड सेफ्टी टीमों का चिन्योट में क्रैकडाउन, मुतादिद फूड पॉइंट्स, किराना स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स पर छापे। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल पर मारूफ रेस्टोरेंट को भारी जुर्माने किए गए। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुजमई तौर पर 1,89,000 रुपए के जुर्माने किए गए। रेस्टोरेंट्स के मुआयने के दौरान स्टोरेज के नाकिस इंतजामात पाए गए। हजरात के तदारुक के इंतजामात भी नाकाफी, वर्कर्स की शख्सी सफाई भी नाकिस पाई गई। किराना स्टोर के मुआयने के दौरान 5 किलो से ज्यादा एक्सपायर्ड और ममनुआ अज़ा तल्फ किए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 15 लीटर मिलावटी दूध भी तलब किया गया। नए कवानीन के मुताबिक मिलावट और जाल साजिया माफिया को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। फेस्को का हंगामी बुनियादों पर सिंगल फेज मीटर्स खरीदने का फैसला। फेस्को ने तमाम सर्कल से अदाशुदा डिमांड नोटिस की तफसीलात तलब कर ली। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को सारिफिन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल खरीदने का हुक्म। फेस्को में 20,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर सारिफिन नए मीटर्स के मुंतजिर अपडेट कर रहे हैं। फेस्को का हंगामी बुनियादों पर सिंगल फेज मीटर्स खरीदने का फैसला। फेस्को ने तमाम सर्कल से अदाशुदा डिमांड नोटिस की तफसीलात तलब कर ली। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को सारिफिन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल खरीदने का हुक्म। फेस्को में 20,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर सारिफिन नए मीटर्स के मुंतजिर। फेस्को एएमआई मीटर्स की सेटिंग के मसाइल का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से मुतासरा एएमआई मीटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एएमआई मीटर्स की सेटिंग्स के हवाले से रिकॉर्ड पीआईटीसी को फ्राहम कर दिया गया है। नेट मीटरों के लिए इस्तेमाल होने वाले एएमआई मीटर्स की सेटिंग्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है। एएमआई मीटर्स की सेटिंग्स के मसाइल के 22 रिकॉर्ड तलब किया गया है। 5 रोज में तमाम सर्कल्स को मुतासरा एएमआई मीटर्स का रिकॉर्ड देने का हुक्म। फेस्को हुकाम का कहना है कि एएमआई मीटर्स की सेटिंग्स के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स फ्रॉड या चोरी के इल्जामात पर गिरफ्तारियों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी में एफपीआर अफसरान और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 में टैक्स डिफॉल्टर्स और सेल टैक्स फ्रॉड के इल्जामात पर गिरफ्तारी का इख्तियार तफ्तीशी अफसरान को दिया गया था। कारोबारी तबके की जानिब से गिरफ्तारियों के इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। कारोबारी तबके का मौक़िफ़ है कि एफपीआर अफसरान के इख्तियारात में बिलाजवाज़ इजाफे से हिरासमेंट में मजीद इजाफा होगा। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद की रहायशगाह पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुशावरती इजलास का इनेकाद। टिकट होल्डर मियां अरफान मनान खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। दहशतगर्दी के ड्रामे करवाते हो और फिर राह फरार अख्तियार करते हो। हमने सैकड़ों सबूत पेश किए जो नाकाबिले तरदीद थे, मगर मोदी पहलगाम के वाक़े के ऊपर एक भी सबूत पेश नहीं कर सका और उसको जवाब बनाकर
रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला करता है और 4-5 उन मराकज पर हमलावर होकर ये पैगाम देने की कोशिश करता है कि यहां पर दहशतगर्द ट्रेन होते हैं। और भाई वहां तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी की जाती है, वहां कुरान की तालीमात दी जाती हैं, वहां दीन की तालीमात दी जाती हैं, और उसके अंदर तुमने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद पाकिस्तानियों वो जो सब सवाल करते थे, हम भी करते थे और भी लोग करते थे कि 80% पाकिस्तान का बजट पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज खा जाती है। यही कहते थे ना कि 80% मुल्क का बजट खा जाते ने, इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं हैगा। उन्होंने इंडिया के जवाब में जब दिन की रोशनी में हमला किया और उस हमले के अंदर उनके ना सिर्फ राफेल तबाह किए बल्कि इंडिया के जहाज अपनी छोनियों को दौड़े और छुपा लिए गए। ये थी पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज, ये थे पाकिस्तान के शहीद जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानियों आप 80% बजट की बात करते हो, आप हमें कुछ ना दो मगर रब्बे काबा की कसम आपके जुग्राफियाई सरहदों की जो हिफाजत है वो हमारे अंग अंग में शामिल है। ये है पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज। टोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजेस की साइंस लैब में अमली तालीम के लिए केमिकल्स मौजूद नहीं। अमली तालीम के लिए केमिकल्स की शदीद कमी है। अमली तालीम में इस्तेमाल होने वाले आलात भी मौजूद नहीं हैं। बायो लैब के लिए मखसूस इकसाम की सांप, मेंढक, दीगर इकसाम के कीड़े मौजूद नहीं हैं। फिजिक्स लैब में पेंडुलम, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर की कमी है। साइंस लैब में बुनियादी आलात न होने से अमली तालीमात मुतासिर होने लगी। कॉलेजेस ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को साइंस लैब के लिए सामान फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम की तकमील के लिए मंजूरी महकमा बहबूदाबादी ने तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी तलब कर ली। RTI की बिल्डिंग की तकमील के लिए 18 करोड़ के फंड्स मंजूरी की इस्तदा की गई है। महकमा बहबूदाबाद का कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला स्कीम की मंजूरी की इस्तदा की गई। RTI की बिल्डिंग पर महकमा बिल्डिंग्स की जानिब से काम जारी है। सूबा भर में दूसरा मरहला में BHUs की रिवैम्पिंग स्कीमों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद की जेर सदारत इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल्ला नैयर, एडिशनल सेक्रेटरी अमीरुल हसन शाह और दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर के पहले मरहले के रिवैम्पिंग शुदा BHUs प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले न करने का सख्त नोटिस। फैसलाबाद डिवीजन के अफसरान बिल्डिंग्स को वार्निंग जारी। सूबाई वजीर के मुतलका अफसरान को BHUs प्राइमरी एंड सेकेंडरी को फौरी हैंड ओवर करने की हिदायत की गई। तामीराती काम के मयार और रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे के 8,467 मिलियन की लागत से 515 BHUs की रिवैम्पिंग की जा रही है। 30 सितंबर तक रिवैम्पिंग के अमल को मुकम्मल कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर की तामीराती कामों में आला मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत। BHUs रिवैम्पिंग स्कीमों के स्कोप ऑफ वर्क के मुताबिक सामान लगाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शोबे सेहत में इनकलाबी इक़दाम जारी हैं। चिन्योट में भी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फाल कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक 126 GMB का विजिट किया। CEO हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज क्लिनिक्स ने काम शुरू कर दिया है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए गए और तमाम बुनियादी सेहत की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। इन सेहत मराकज में बच्चों की पैदाइश, मां की सेहत और बुनियादी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस मरकज सेहत पर एक माह के दौरान 50 से ज्यादा डिलीवरीज हुई। 2000 के करीब अफराद ने इस क्लिनिक से फायदा उठाया। फैसलाबाद के ज़रूरी साइंसदानों की अहम काविश, चाय से शुगर का इलाज दरियाफ्त कर लिया। चाय के मुतवातिर इस्तेमाल से शुगर को जड़ से उखाड़ना मुमकिन हो सकेगा। शोबा केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजा आदिल सरफराज ने 10 सालों की काविश से शुगर का इलाज दरियाफ्त कर लिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा।
बात करें यहाँ पर शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर ज़रई यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजा आदिल सरफराज की जानिब से एक चाय ईजाद की गई है जिससे शुगर का जो है वो इलाज हो सकेगा, शुगर को जड़ से उखाड़ना मुमकिन होगा। ये कैसे ईजाद हुई, कितने साल लगे, कहाँ से मिलेगी, ये सारा कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, ये तकरीबन 14-15 साल का सफ़र है जिसमें हमने मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके और मुख्तलिफ ट्रायल से गुजार के, एनिमल ट्रायल से, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल से गुजार के, तो ये एक प्रोडक्ट पेश किया है जो कि तकरीबन मोर देन 90% जो पेशेंट्स हैं उनमें सक्सेस रेट्स कर रहा है, जो कि बाकायदा एक डाइट प्लान के तहत एक परहेज़ के साथ जिन्होंने यूज़ किया है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी तकरीबन 10 साल के ट्रायल में 2015 से लेके 24 तक तो ये एक सक्सेस रेट हमें मिलता है, जिसकी बेस पे हमने इसको मतलब इनकरेज हो गए तो लास्ट ईयर 2024 में लॉन्च किया है। जिस हवाले से ये 10 साल की शबाना रोज़ मेहनत के बाद ऐसी हर्बल टी बना ली गई है ग्लूकोवाइट के नाम से कि जो आपकी शुगर को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ज़रई यूनिवर्सिटी में साइंसदानों की कावश, हैरानकुन कावश सामने आई है कि जिसमें शुगर की बीमारी से लड़ना मुमकिन हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज फैसलाबाद कैंपस ने नेशनल और इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर कर दिए। अब तलबा फैसलाबाद में रहते हुए भी इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट टीएमयूसी निगहत नसरीन कहती हैं कि मैट्रिक के बाद तलबा टीएमयूसी से इंटरमीडिएट में एफएससी, आईसीएस, आईकॉम और एफआईटी में दाखिला ले सकेंगे, जबकि इंटरमीडिएट के हामिल तलबा एलएलबी, कंप्यूटर साइंसेज और टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकेंगे। तमाम बीएस प्रोग्राम्स में तलबा को इंटरनेशनल लेवल की तालीम फ्राहम की जाएगी और बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड की जाएगी। के लिए हर तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर एफएससी भी ऑफ़र करते हैं जो बच्चे मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे काफ़ी सारा बच्चे जो हैं वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स भी करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास ACCA भी है, फाउंडेशन भी है, ठीक है ना, वो सारे प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि उनका बच्चा उन्हीं के सामने है, उन्हीं के शहर में है, लेकिन उसको डिग्री बाहर की मिल रही है, जिसकी आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है। और ड्यू टू द राइज इन क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है TMUC में, और यहाँ पर बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, वेल रिसोर्स्ड क्लासरूम्स हैं और एयर कंडीशनड हैं, लैब्स भी हमारी वेल रिसोर्स एंड एयर कंडीशन है। सो यू फाइंड स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम अपने बच्चों को ऑफर करते हैं और उनको कैंपस लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी जानिब वाइशी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा और मुलाजमीन के बच्चों की मयारी तालीम के लिए अहसन इकदाम। पंजाब पुलिस और फैसलाबाद के मारूफ निजी कॉलेज किंग्स फूड के मबैन MOU साइन कर दिया गया।